Hello, I wish you a very warm good morning to all dear students. Today I will going to discuss about the embryology as a evidence of evolution. We have already discussed about the many another type of evidence for the evolution like paleontology, like geographical distribution and homology, analogy, vestigial organ and connecting link and biochemical evidence, that type of evidence, and with example we were already discussed about it. Today I will discuss about a very important evidence that is called embryology. एम्ब्रियोलॉजी बच्चों किस प्रकार से एक एविडेंस के रूप में यहाँ प्रदर्शित करता है, अपनी थ्योरी को दर्शाता है। तो इसके लिए वॉन बियर एक साइंटिस्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंग टू वॉन बियर द ऑन्टोजनी रिपीट इट्स फाइलोजेनी। तो इस चीज को हम बच्चों यहाँ पर समझेंगे कि एक सिंपल एनिमल से कॉम्प्लेक्स एनिमल का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस रिपीट बाय द इंडिविजुअल एम्ब्रियोलॉजी। तो किस प्रकार से हम देखते हैं, तो बच्चों आइएगा कि एक एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे हम एविडेंस को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर एविडेंस फॉर फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजी, इट इज बेस्ट एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। द beer law, one beer an organism saw its ancestor stage in its embryonic development. In embryo stage, the general characteristic appear the firstly, then the specialized character appear. And according to Muller, the firstly proposed a recapitulation theory. According to Muller, then according to Muller or Hickel, ontogeny recapitulate the phylogeny, repeat it's a phylogeny, recapitulate of the phylogeny. It means any organism show it the ancestral adult stage during its embryonic development. It show that all organisms evolve from a कॉमन एंसेस्टर। इसको बच्चों हम एक अलग से हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे हम एविडेंस को यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है एम्ब्रियोलॉजी का यहाँ एविडेंस के रूप में शो करने के लिए। यहाँ तो फ्रॉग डेवलपमेंट को हम यहाँ पर बता सकते हैं। फ्रॉग डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हुआ है, जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर द एम्ब्रियोलॉजिकल। यहाँ फ्रॉग डेवलपमेंट में हम देखिएगा बच्चों, यहाँ इनिशियल तौर पे यहाँ पर देखिए, यहाँ इट इज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट थ्रू क्लीवेज फॉर्म ए मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर एट सेल स्ट्रक्चर, तो दैट इज कॉल्ड मोरुला। That is called morula. The zygote convert into the morula. Then the morula also convert into the small structure, small next embryonic development. Inside of the morula form a cavity that is called blastocele cavity. And outside of the morula, outside of the blastocele cavity, that is called trophoblast or blastodrum. In case of human, that is called trophoblast. That structure known as the blastula. तो इसके बाद में बच्चों यहाँ पर डेवलपमेंट क्या हुआ, ब्लास्टुला का डेवलपमेंट हुआ। देन द ब्लास्टुला कन्वर्ट इनटू द वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गैस्टुला। द आउटर लेयर ऑफ द गैस्टुला इज कॉल्ड ectoderm. Middle layer is called mesoderm. And inner layer is called endoderm. The middle of the animal of the embryonic stage form a cavity that is called archenteron cavity. The archenteron cavity opened by a pore outside of the body, outside of the embryo, that is called blastopore. Then after differentiation and organization from the gastrula, that structure known as the gastrula
and the gastrula after organization of the germinal layer and formation of the organ then form a fish-like structure that is called fish-like structure. इस टाइप की या fish-like structure that is called tadpole larva. Tadpole larva. Tadpole larva and tadpole larva convert into the adult frog. Adult frog. So that is embryology of the frog. इस प्रकार से बच्चों हम देख सकते हैं कि ये एक फ्रॉग की एम्ब्रियोलॉजी है। अब ओरिजिन को कैसे यहाँ पर इसको हम बेस मान सकते हैं कि एविडेंस कैसे शो कर रहा है, तो नेचर में ओरिजिन हुआ बच्चों सबसे पहले यहाँ पर यूनिसेलुलर जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोटोजोवन का डेवलपमेंट हुआ था। तो प्रोटोजोआ या प्रोटोजोवन है कोई इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है तो हम कहते हैं कि हमारी एंसेस्ट्री है। ऑन्टोजेनी रिपीट इट्स फाइलोजेनी, तो फाइलोजेनी जो हमारी एंसेस्ट्री है उसमें हम उसकी हिस्ट्री को रिपीट करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ का रिपीटेशन किसके द्वारा हो रहा है, जाइगोट के द्वारा हो रहा है। जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो ये देखिएगा प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल है तो जाइगोट भी एक यूनिसेलुलर एनिमल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कह सकते हैं जाइगोट सिमिलर टू दी प्रोटोजोआ। देन प्रोटोजोआ से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ पोरीफेरा और सिलेंड्रेट्स जो एनिमल बने हैं ये यहाँ पर डेवलपमेंट हुए। पोरीफेरा के अंदर जो लार्वा स्टेज है इसको हम कहेंगे एम्फीब्लास्टुला लार्वा। Porifera larva also known as the amphiblastula larva. Amphiblastula larva is a multicellular structure just like the morula of the embryonic stage of a frog. So morula has similarity showing the porifera animal. Then next animals group are developed Coelenterata. The Coelenterata have a cavity, coelentron cavity. TS of the coelenterate have a coelentron cavity and outer side of the coelentron cavity found two type of layer diploblastic animal. First is the ectodrum, second is the gastrodrum or endodrum. So that is similar to the blastula of the embryonic stage of the frog. Then next is the coelenterate. From the coelenterate develop platyhelminthes animal and Aschelminthes animal and others higher animal. We have a TS of the higher animal. The animal body divided into covered by three structures, three layer. Outer layer is ectodrum, middle layer is mesodrum, then inner layer is endodrum, and center of the body formed by the gut found a cavity. That type of structure in the embryonic stage, the gastrula is showing similarity to the higher animal TS of the body. The inside of the gastrula found a archenteron cavity. The archenteron cavity showing similarity to the gut or alimentary canal. And the ectodrum, mesodrum and endodrum also triploblastic animals, triploblastic layer, that layer are found only in the triploblastic animals. तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सरल सिंपल एनिमल का जब डेवलप होता है तो हमारी एम्ब्रियोलॉजी है, हमारा जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो यहाँ वो सिमिलरिटी शो करता है इवोल्यूशन के साथ में, इवोल्यूशनरी एनिमल के साथ में। इसके बाद में हम कहते हैं कि यहाँ पर देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्रॉग एम्ब्रियो, द फॉर्म ए टेडपोल लार्वा जस्ट लाइक ए फिशेज और फिशेज यहाँ सिमिलरिटी शो कर रहा है फिशेज के बाद फिशेज के साथ है। और फिशेज के बाद में नेक्स्ट जो यहाँ ग्रुप बना है वो एम्फीबियन ग्रुप बना है। अपने पर्टिकुलर जो करेक्टर है, अपने स्पीशीज के करेक्टर है, अपने खुद की क्लास के करेक्टर है वो यहाँ पर एंड में डेवलप होते हैं और एक एनिमल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस बेस पे यहाँ एविडेंस अकॉर्डिंग टू हिकल है, अकॉर्डिंग टू वन बियर है, वो क्या कहते हैं यहाँ सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है वो प्री डेवलपमेंट देन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और कह सकते हैं हम यहाँ बड़े फाइलम के करेक्टर, किंगडम के करेक्टर है वो पहले डेवलप होते हैं और लास्ट में स्पीशीज स्पेसिफिक करेक्टर है वो एंड में डेवलप होते हैं, जो अपनी जाति को यहाँ पर दर्शाते हैं, जो एडल्ट को दर्शाते हैं और यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं कि ये इस ग्रुप का एनिमल है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक थीम है उसको हम समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। तो
Okay बच्चों, I hope you are absolutely understand about the theory about the rule of the von Baer. Then हम नेक्स्ट यहाँ पर देखें आगे बायोजेनिक, दैट इज ऑल्सो नोन एज द बायोजेनेटिक लॉ. Ernest Haeckel explain it in the detail and give the name of the biogenetic law. Examples: the zygote from which the development of the metazoa body start are the single cells and quite comparable with the body of the simple protozoa. हमने यहाँ पर एक जाइगोट और प्रोटोजोआ को आपस में कंपेयर किया है. This indicate the origin of the metazoa. Metazoa meaning Porifera, Coelenterata, Aschelminthes, Platyhelminthes, Annelida, जो भी एनिमल है वो मेटाजोअन्स के अंदर आ रहे हैं. तो यहाँ प्रोटोजोआ एंसेस्टर, the early stage of the embryonic development via morula, blastula and gastrula are basically similar in all metazoan, indicating a morphogenetic origin of the latter. Then the phylogenetically earliest metazoa, that is the sponge and cnidarian, have a retained early gastrula like the double-layered structure, diploblastic animal or diploblastic structure of the body of the metazoa like a Porifera and Coelenterata. Then evolutionary trend क्या है यहाँ पर? The continuous change of the character with the evolving lineage is a term as evolutionary ट्रेंड. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो बॉडी है, जो ऑर्गन है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर बच्चों इवोल्यूशनरी जो ट्रेंड क्या है, कंटिन्यूअस है या प्रोग्रेसिवली चेंजेज है, वो यहाँ पर यहाँ एनिमल के अंदर है वो डेवलप होते हैं और उस चेंजेस से यहाँ नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है और इवोल्यूशन उस एनिमल के अंदर कंटिन्यूअस है वो है. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस चेंजेस ऑफ द कैरेक्टर विद इन दी इवोल्यूशनिक लीनिएज इज टर्म एज द इवोल्यूशनरी ट्रेंड. तो ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम एविडेंस के रूप में इस चीज को हम समझ चुके हैं. इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इवोल्यूशन का. जो ये सेकंड पार्ट था एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड अदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवोल्यूशन. देन नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, विच टाइप ऑफ साइंटिस्ट इन्वॉल्व एंड प्रपोज द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन. तो वी कैन से दैट firstly the Lamarck that proposed a evolutionary theory, then Darwin, then Weizmann. Mainly three scientists are involved in the ancient evolution theory. The first is the Lamarck theory or Lamarckism, first evolutionary theory. तो what do you mean about the Lamarckism? Lamarckism or Lamarck theory, it is very very important theory. The first theory of the evolution was proposed by Jean-Baptiste de Lamarck in the 1744 to 1829. The book of the Lamarck, he wrote the book of philosophic zoology in 1809. The Lamarck coined the term invertebrate and Annelida also. Okay, it is very very important. The name asking of the full name of asking in the exam, what is the name of the Lamarck? Full name of the Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck is the full name of the Lamarck. Which type of book wrote the Lamarck? The philosophic zoologic book written by the Lamarck. It is very very important question बच्चों, नीट के अंदर ये बहुत ही important क्वेश्चन है. यहाँ पूछा जाता है कि कौन सी बुक है वो लेमार्क ने यहाँ लिखी थी. तो यह फिलोसफिक जूलॉजिक बुक है वो लिखी थी लेमार्क ने. अब देखिए लेमार्क ने कुछ और वर्ड भी यूज किए थे. इनवर्टिब्रेट वर्ड है फर्स्ट टाइम यूज बाय द लेमार्क. देन एनेलिडा वर्ड टेक्सोनॉमी हम स्टडी करेंगे यहाँ पर. तो इनवर्टिब्रेट की जब स्टडी करेंगे उसमें यहाँ पर एनेलिडा इज ए फाइलम. एनेलिडा वर्ड फर्स्ट टाइम यूज बाय द लेमार्क. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन the term biology also, the term biology was given by the Lamarck and Treviranus.
ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है या इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि टर्म बायोलॉजी यूज बाय, तो टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क एंड एक साइंटिस्ट और थे, उसको हम कहेंगे ट्रिवेरेनस और लेमार्क है, दोनों ने मिलके ये टर्म बायोलॉजी वर्ड यूज किया गया। जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर बनाने में हेल्पफुल होगी, जो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद 12th के अंदर हमारे पास में होनी चाहिए, या तो ये हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो ये जो बायोलॉजी वर्ड आया है, तो ये बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, आपको ये बच्चों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आंसर आएगा लेमार्क ने ये बायोलॉजी वर्ड यूज किया था। और साथ में कौन थे, तो यहाँ पर और है ट्रिवेरेनस, जो यहाँ पर दूसरा साइंटिस्ट है, इन्होंने इसका सहयोग किया बायोलॉजी वर्ड के यहाँ प्रपोज करने में। अकॉर्डिंग टू लेमार्क ने जो थ्योरी यहाँ प्रपोज की थी, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क प्रपोज द theory of Lamarckism, the theory of inheritance of the acquired character, the basic concept of the Lamarckism. What do you mean about the basic concept of the Lamarckism? According to Lamarck, the first theme, the first word used, the internal vital forces. Some internal forces are the present in the all organism. According to Lamarck, Lamarck क्या कह रहा है कि हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म है या इस नेचर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सम स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स वर डेवलप्ड है, दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। इसके अंदर अपने आप इनहेरेंट टेंडेंसी है बच्चों कि इसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंटरनल वाइटल फोर्स। ये एक अपने आप ही इंटरनल टेंडेंसी है। By the presence of these force, the organism have the tendency to increase the size of their organs and entire body. हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, इंटरनल फोर्स। इस इंटरनल फोर्स के कारण हमारी टेंड है क्या, व्हाट टेंड है हमारा, इंक्रीज साइज ऑफ द बॉडी, इंक्रीज साइज ऑफ द ऑर्गन्स। तो ये एक हमारा टेंड है, एक डेफिनेट एज तक है वो हमारे ऑर्गन्स और हमारी बॉडी है उसका साइज है वो इंक्रीज होगा। तो ये क्यों हो रहा है, ये किसने बताया, ये लेमार्क ने बताया था। फर्स्ट जो उन्होंने अपने कंसेप्ट दिया था, टेंड ऑफ द थ्योरी इंक्रीज ऑफ द साइज और फोर्स। Then second, effect of the environment and new need, that is very very important concept. ये क्या कर रहा है, तो ऑर्गेनिज्म है उस पर एनवायरमेंट का इफेक्ट आता है। द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चेंजिंग एनवायरमेंट गिव राइज टू न्यू नीड। यहाँ बच्चों सराउंडिंग एनवायरमेंट होता है ऑर्गेनिज्म के, वो यहाँ पर चेंजिंग एनवायरमेंट है। ये एनवायरमेंट स्टेबल कभी नहीं होता, चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसकी रिक्वायरमेंट होती है न्यू नीड की। अब जब न्यू नीड की रिक्वायरमेंट होती है तो एनिमल उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाता है। तो ये बात कर रहा है, कंटिन्यू यहाँ पर न्यू नीड की रिक्वायरमेंट है। न्यू नीड और डिजायर प्रोड्यूस ए न्यू स्ट्रक्चर, देन डॉक्ट्राइन ऑफ द डिजायर एंड एपिडेंसी एंड चेंज हैबिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। न्यू नीड, न्यू डिजायर के अकॉर्डिंग बच्चों उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन स्ट्रक्चर आर चेंजेज। देन नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिज्म और न्यू स्पीशीज विल बी चेंजेज। तो इस प्रकार से यहाँ पर इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड द न्यू नीड, then use and disuse of the organs. It is very very important theory of the Lamarck, use and disuse theory of the Lamarck. According to Lamarck, if an organ is the consistently used, according to Lamarck, if an organ is the consistently used, it would be better developed, whereas disuse of organs result in its degeneration, its degeneration. Yeah, when the better use of the organs, then better develop, then not use of the organs, then organs are degeneration, according to Lamarck. तो बच्चों सिंपल डेफिनेशन में हम ये बात कहें कि हमारे अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ऑर्गन है, उसका जितना ज्यादा हम उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा वो बेटर डेवलप होगा, और जिसका यूज करना हमने छोड़ देंगे वो ऑर्गन धीरे धीरे यहाँ पर डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स।
Then next and last final decision of the Lamarck according to theory, the inheritance of the acquired character. It is very very important. Inheritance of the acquired character. ये क्या कहना चाह रहा है? During the lifetime of an organism, new character developed. During the lifetime of an organism, new characters develop due to the internal vital force. Effect of environment, new need and use and disuse of the organs, these acquired character are the inheritance from one generation to another type of the generation. बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है? इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर ये कह रहा है कि हमारी जो लाइफ है उस लाइफ में हम यूज और डिसयूज के अकॉर्डिंग, न्यू नीड के अकॉर्डिंग, इंटरनल फोर्स के अकॉर्डिंग, न्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो भी कैरेक्टर है वो इनहेरिटेंस करेंगे. जो भी हम एक्वायर्ड करते हैं वो कैरेक्टर न्यू जनरेशन में या जनरेशन बाय जनरेशन है वो या ट्रांसमिसेबल है. ये अकॉर्डिंग टू लेमार्क ये बात कही थी यहाँ. तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर. जो कैरेक्टर हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट, हम हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, हम हमारी फिजियोलॉजी में चेंजेस कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन है वो ट्रांसमिसिबल है. दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर. By continuous inheritance through many generations, these acquired characters tend to make a new generation quite different from its ancestor, resulting in the formation of new species. तो ये बच्चों यहाँ पर लेमार्क का मेन थ्योरी दिए, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो ये मेन थ्योरी ऑफ द लेमार्किज्म. Then the example in the support of the लेमार्किज्म, first is the long neck and the high forelimb of the giraffe. It is very very important example. बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लेमार्किज्म, तो लॉन्ग नेक और हाई लिम्ब फोरलिम्ब ऑफ द जिराफ. ये क्या कहना चाह रहा है? इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा बच्चों यहाँ पर ये एक जिराफ है. प्रारंभिक तौर पे इनिशियल तौर पे एक जिराफ का साइज छोटा था, नेक का साइज भी यहाँ पर छोटा था. जिराफ क्या करते हैं, नीचे यहाँ पर घास चरते थे. प्रारंभिक तौर पे यहाँ पर ग्रास प्रेजेंट थी, लेकिन धीरे धीरे लैंड ग्रास है वो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, लैंड फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हुए. डिस्ट्रॉय होने के कारण वो ऊपर की जो प्लांटेशन है, जो बड़े प्लांट है, लार्ज प्लांट है, उसकी लीव्स को खाने लगे. उसको खाने के लिए वो बार बार प्रयास करते थे और अपनी नेक को अपन बार बार ऊपर से खाने के लिए, प्लांटेशन को, लीव्स को खाने के लिए प्रयास करने लगे. जिससे क्या हुआ, इससे नेक का साइज है वो इंक्रीज हुआ, लेग का साइज इंक्रीज हुआ और धीरे धीरे चल के आज जो रिसेंटली जो जिराफ है एक लार्जेस्ट नेक का जिराफ बना हुआ है और जो एक बड़े से बड़े पेड़ को बड़ी आसानी से उनके लीव्स को वो खा सकते हैं. बट हम हमारे एंसेस्टर, हमारे जिराफ के एंसेस्टर को देखें तो जस्ट लाइक काऊ, जस्ट लाइक डंकी, इस साइज का जिराफ था. लेकिन रिसेंटली जिराफ को देखें तो एक लॉन्ग नेक और लॉन्ग फोर लेग का जिराफ बन गया. तो ये क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर था. एक्वायर्ड कैरेक्टर था और एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन है वो ट्रांसफर होने लगा अकॉर्डिंग टू लेमार्क. देन नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, एक्वाटिक बर्ड स्ट्रेचेज देयर द टॉय एंड डेवलप द वेब. यहाँ पर ये बच्चों यहाँ पर एक टॉय दिखाई गई है, एक्वाटिक बर्ड है. ये भी यहाँ पर एक एक्वाटिक बर्ड है जो पानी के अंदर बच्चों अच्छी तरह चल नहीं सकते, तो पानी के अंदर, वाटर के अंदर वो स्विम करने का प्रयास करते हैं. स्विम करने से ये जो पैर दिखाया गया है, देखिए बच्चों, ये पैर के अंदर प्रयास कर रहा है किस प्रकार से मैं स्विम करूं, चलने में दिक्कत आ रही है. धीरे 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 प्रयास के कारण इसके यहाँ फिंगर के बीच की स्किन है वो या एनलार्ज हो गई और एक जाल बना लिया. इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बन गई बीच में और ये क्या है, एक इस प्रकार से पतवार की भांति यहाँ पर काम करती है, तो पानी को पीछे से भेदन करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए एनिमल को आगे यहाँ पर बढ़ाती है. तो इस प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एक्वायर्ड बर्ड्स के अंदर है, वो स्ट्रेच
देयर टॉय एंड डेवलप दी वेब, एक वेब का डेवलपमेंट है वो यहाँ लेमार्क के अकॉर्डिंग है। ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है जो जनरेशन थ्रू जनरेशन है वो यहाँ पर ट्रांसफर होने लगा। देन नेक्स्ट इज द स्नेक्स लॉस्ट दी देयर लेग। स्नेक की बात करें बच्चों, यहाँ माना जाता है कि जो एंसेस्ट्रल स्नेक है, ये एक स्नेक दिखाया गया है। देखिए बच्चों, ये स्नेक है, इस स्नेक में यहां पर लेग दिखाई गई है, यहां पर लेग दिखाई गई है। ये एक लिजर्ड लाइक स्नेक यहां पर दिखाया गया है। जो पहले गिल्डल है वहां पर लेग है, लेकिन लेग का उपयोग नहीं करता था। स्नेक क्या मूवमेंट करता है, क्रेवलिंग मूवमेंट कर रहा है और रेप्टिलियन मूवमेंट कर रहा है। इसके कारण यहाँ जो इसकी लेग है इसका कोई यूज नहीं था। यूज न होने के कारण ये लेग डिजनरेट होती गई। तो यूज एंड डिसयूज जो थ्योरी है वो यहां पर इस एग्जांपल के द्वारा हम उसके फेवर में बता सकते हैं या कि लेग का यूज न करने से स्नेक के अंदर लेग है वो यहाँ डिसअपियर हो गए हैं। जो एक या बड़े सुंदर सी फोटो के द्वारा, स्नेक की फोटो है उसके द्वारा बच्चों हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर यहाँ है, स्नेक लॉस्ट देयर लेग्स। देन नेक्स्ट इज डियर। डियर बिकम गुड रनर by the development of the strong limb and streamlined body। डियर के अंदर देखिए, प्रारंभिक जो डियर है उसके अंदर आप देखोगे इनिशियल जो डियर है उसकी लेग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उसकी बॉडी है स्ट्रीमलाइन नहीं होती बिल्कुल ऐसे। जब डियर धीरे धीरे दौड़ने लगा उसको बचाने के लिए उसकी रनिंग ही एकमात्र जो उपाय है। नेचर ने उसे और कुछ नहीं दिया कि कोई प्रे उसको यहाँ अटैक करे तो वो किस प्रकार से अपने बच सके। तो ध्यान रखिए बच्चों, सबसे तेजी से दौड़ने वाला जो यहाँ एनिमल है वो डियर है, जो नियर अबाउट है वो 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ रन करता है। एक टाइगर है, उसकी स्पीड 60 से 65 प्रति किलोमीटर यहाँ पर बता सकते हैं। इतनी किलोमीटर कितनी 60 to 65 किलोमीटर पर आवर है वो यहाँ इसकी रनिंग रेट होती है। तो डियर इज ए फास्टर एनिमल फॉर अकॉर्डिंग टू रनिंग। तो अब ये डेवलप क्यों हुई, यहाँ पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, बॉडी स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन होने के कारण बहुत अच्छी तरह से ये फास्ट है, एयर को यहाँ पेनिट्रेट करते हुए एनिमल आगे रन कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इट इज ए बेस्ट एग्जांपल है जो लेमार्क की थ्योरी को यहाँ फेवर करता है। देन रेट्रैक्टाइल क्लॉज ऑफ द कार्निवर्स एनिमल्स। जितने भी कार्निवर्स एनिमल है उनके अंदर क्लॉज बच्चों इस प्रकार से रहते हैं जैसे कि बिल्कुल जैसे किसी सबस्ट्रेट में कांटेक्ट में है तो बिल्कुल रेट्रैक्टाइल होता है यहाँ पर, और ये किसी सबस्ट्रेटम को पकड़ने में क्या है, कैप्चर करने में यह अपने हेल्प करता है। तो ये भी इस प्रकार से शो करता है लेमार्क की थ्योरी को। अब ये फेवर में थ्योरी थी लॉन्ग जिराफ, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, लेग लॉस्ट इन द स्नेक, और यहां पर डक नेट फाउंड इन दी लेग। इस टाइप से ये फेवर के कैरेक्टरिस्टिक थे। बट बहुत सारे साइंटिस्ट ने बच्चों यहां देखा कि लेमार्क थ्योरी डज नॉट कंप्लीट शोइंग द इवोल्यूशन एंड सम ऑब्जेक्शंस वर फाउंड बाय द मेनी साइंटिस्ट। Then what type of objections? So that is called the criticism of the Lamarck. According to first concept, organism tend to increase their size, but it is not universally true. लेमार्क कह रहा है बच्चों हमारी बॉडी की टेंडेंसी है इंटरनल फोर्स के कारण कि बॉडी का साइज इंक्रीज होता है, बॉडी की ऑर्गन इंक्रीज होते हैं, बट ये कह रहा है यहाँ पर नॉट यूनिवर्सली ट्रू। The third concept is somewhat true, like the well-developed biceps muscles of the blacksmith and the less developed wing in the flightless bird। ये बच्चों यहाँ पर हम इसके द्वारा ट्रू कर सकते हैं, बता सकते हैं कि फ्लाइटलेस बर्ड है उसके अंदर फ्लाइटलेस बर्ड है उसमें मसल्स है वो यहाँ डेवलप कम हुई, जबकि बाइसेप्स मसल्स है वो उसकी वेल डेवलप है। या तो ये यहाँ पर बताया जाता है
but this concept also have many objections, like the eye of the student reader do not increase in the size and the power with the increasing age. The consistently beating heart maintain a consistent size through the generation. यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि ऑब्जेक्शंस क्या है। हम कह रहे हैं कि जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज किया जाता है वो वेल डेवलप होता है। तो एक स्टूडेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा अपनी आई को यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू विद द रिस्पेक्ट एज स्टूडेंट की आई की विजन और शार्प होनी चाहिए, जबकि होता है ऐसे है कि उसकी विजन है वो कमजोर हो जाती है। फोर्थ कंसेप्ट इज द कंप्लीटली फॉल्स बिकॉज द एक्वायर्ड कैरेक्टर आर नॉट इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू लेमार्क। The acquired character is the inherited, but the objection is the acquired character are not inherited. क्यों यहां पर? तो इसके बच्चों कुछ यहां पर थ्योरी, इसके ऑब्जेक्शंस बताए गए हैं। हम बात करेंगे कि एक कोई भी मस्कुलेचर जो पर्सन है उसकी जो या प्रोजेनी है वो मस्कुलेचर नहीं होती। एक डॉक्टर की जो चाइल्डहुड है, डॉक्टर के बच्चे हैं वो डॉक्टर नहीं बनते। एक लॉयर के बच्चे लॉयर नहीं बनते हैं। एक कह सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर के बच्चे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। तो ये बच्चों यदि ऐसा होता, एक्वायर्ड कैरेक्टर होता, तो ये इनहेरिटेड हो जाता, और इनहेरिटेड हो जाता तो उसकी संतान है वो वैसी की वैसी यहाँ पर बनती, बट ऐसा नहीं है यहाँ। तो ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन है। विजमैन ने सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन बताया था। विजमैन ने कहा था, विजमैन कट ऑफ द टेल ऑफ द रैट फॉर द 22 जनरेशन, but there was no reduction in the size of the tail. On the basis of this experiment, the Weizmann proposed the theory of the continuity of the germplasm. It is a very very important theory बच्चों। ये क्वेश्चन आता है कि Weizmann सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन किसने किया था, प्रूव किसने किया था एक्सपेरिमेंटल लेमार्क का? तो आंसर आएगा यहाँ पर है Weizmann ने सबसे पहले ये प्रूव किया था, और उसने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द germplasm थ्योरी प्रपोज बाय दी विजमैन। और इसने ऑब्जेक्शन, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यहां पर दिया था। अकॉर्डिंग टू विजमैन, टू टाइप ऑफ द मैटर आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज द सोमेटोप्लाज्म, सेकंड इज द germplasm. Two type of the fluid found in our body cells. In the somatic cell found is a somatoplasm, and in germ cell found is a germplasm. Then the somatoplasm in the somatic cells and the germplasm in the germinal cells. The somatoplasm die with the death of the organism, while the germplasm transfer into the next generation. If any variation develop in the germplasm, it is the inherited, while if the variation develop in the somatoplasm, it is not transmitted. तो ये बच्चों बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे। ऑब्जेक्शन से मैंने कहा था आपको कि एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बनता। हमारे इंडिया के अंदर क्या है, गर्ल्स के कान है, जो ईयर है, ईयर रिंग पहनाने की हमारे अंदर एक ट्रेडिशन है। चाइना के अंदर पेट छोटे रखने की एक ट्रेडिशन है बच्चों वहां पर। तो अकॉर्डिंग टू लेमार्क क्या होना चाहिए था, एक बच्ची के पैर छोटे रखने के पश्चात ये उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उसमें वैसे ही पैर होने चाहिए। लेकिन हर जनरेशन के बच्चों को जो प्रोजेनी डेवलप होती है उसको लोहे के शू पहनाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके पैर छोटे रखे जाते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए लेमार्क के अकॉर्डिंग, लेकिन ये कंसेप्ट है रॉन्ग है। इसी प्रकार हमारे हर इंडियंस की जो गर्ल्स है उसकी ईयर रिंग पहनाने के लिए यहाँ पर कान में, ईयर में या पोर करते हैं, छेद करते हैं तो एक दर्द होता है, जबकि होना ये चाहिए हमने हमारी लाइफ में एक्वायर्ड कर लिया कैरेक्टर ईयर रिंग का, नोज रिंग का, तो वो अगली जनरेशन में छिद्र युक्त, पोर युक्त बच्चे जन्मने चाहिए थे, बर्थ होने चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ऑब्जेक्शंस है। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? इसलिए नहीं हो रहा। तो विजमैन कह रहा है कि सम चेंजेस आर फाउंड इन द सोमेटोप्लाज्म इन द सोमेटिक सेल, देन द सम चेंजेस आर फाउंड इन द germplasm in the genetic cell or germinal cell. When the changes are found in the somatoplasm, then
that type of somatoplasm die with the death of the organism. And while the germplasm, when the changes are found in the germplasm, the variation develop in the germplasm, it is inherited, it is transmissible, that is character is transfer from one generation to next generation according to Weizmann, according to germplasm theory. ये बातें लेमार्क को नहीं पता था, ये बातें विजमैन ने यहां पर डिस्क्राइब की थी। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए बच्चों लेमार्क के ऑब्जेक्शंस के, बोरिंग ऑफ ईयर एंड द नोज इन इंडियंस एंड आयरन शू ऑफ द चाइनीज। चाइनीज के आयरन शू, ये एक शू का यहाँ कैरेक्टरिस्टिक एक डायग्राम दिखाया गया है। चाइनीज शू ऐसा एक स्मॉल साइज का शू है। एक गर्ल्स को आफ्टर बर्थ 3 ईयर 4 ईयर की जो गर्ल है उसे ये शू पहना दिए जाते हैं और नियर अबाउट 10 ईयर 15 ईयर तक ये शू पहने रहते हैं, जिसके कारण देखिए बच्चों नीचे से पैर बहुत छोटे हैं, ऊपर से पैर है यहाँ पर मोटे हो जाते हैं, अब नॉर्मल हो जाते हैं। तो वहां के ट्रेडिशन है ये, जबकि ऐसा यदि होता लेमार्क के अकॉर्डिंग, हमने एक जनरेशन में ये कैरेक्टर एक्वायर्ड कर लिया तो उसके बाद में इसके शू पहनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसी प्रकार है बोरिंग ऑफ द ईयर एंड नोज इन द इंडियंस, ये कैरेक्टर भी यहाँ पर हर जनरेशन में यहाँ करना पड़ता है। देन इसके बाद में कुछ साइंटिस्ट ने उसमें यहाँ जो लेमार्क थ्योरी थी उसमें कुछ चेंजेस किया और न्यू थ्योरी यहाँ डेवलप की, दैट इज कॉल्ड न्यू लेमार्किज्म। द न्यू लेमार्किज्म टर्म first time used by the Packard. Although the Lamarckism remained controversial, but some scientists gave the following evidence in the favor of the Lamarckism or Neo-Lamarckism. They are known as the Neo-Lamarckism. Then, according to Neo-Lamarckism, the environment affected the inheritance of the acquired character. Then, according to the changing environment give rise some physical and some chemical changes in the organism which affect their germplasm, and these acquired character are definitely inherited when the changes are found in the germplasm according to environment. So that type of character or these acquired character are definitely transmissible, definitely transmitted from one generation to next generation. Sumner experiment, the first time the Sumner kept the white rat in the warm temperature and resulting in the elongation of the body, large pinna and the long tail. These features were inherited by the offspring. तो समदर ने रेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एक वार्म टेम्परेचर में इसको रेट को डेवलपमेंट करवाया, तो बॉडी के साइज है और यहाँ पर पिन्ना का साइज है और टेल का साइज इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ? टेम्परेचर के कारण। ये चेंजेस कहाँ हुआ था? जर्मप्लाज्म में। फिर देखा कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी यहाँ पर पिन्ना साइज लार्ज है, बॉडी साइज लार्ज है और लॉन्ग टेल प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू समदर। अकॉर्डिंग टू कैमरर, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, कैमरर ने यहां पर किया। द कैमरर केप्ट द सैलामेंडर पर किया इन द डार्क बैकग्राउंड, द ब्लैक स्पॉट फाउंड ऑन द स्किन वर वाइडली स्प्रेड, द लाइटर बैकग्राउंड द स्किन बिकम येलो विद इन लिमिट ब्लैक स्पॉट्स। तो ये बच्चों यहां पर कैमरर का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ These character were the inherited by the offspring. जो ये कैरेक्टर यहाँ अकॉर्डिंग टू कैमरर सैलामेंडर के अंदर डेवलप हुए थे वो ऑफस्प्रिंग में यहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं इनके लेमार्किज्म को। इससे संबंधित कुछ स्पेशल पॉइंट बताए गए हैं। एक साइंटिस्ट हुए एलन है, तो एलन ने एक लॉ दिया, दैट इज कॉल्ड एलन लॉ। इट स्टेट दैट एनिमल विच लाइव इन द वेरी कोल्ड क्लाइमेट देयर extreme such as ear, tail become progressively smaller than the warm animal. According to Allen, that animal which live in the very cold place or geographical conditions or climate
In the cold environment, the ear of the animal, the tail of the animal, and other structure of the animal become the progressively smaller than the warm animal. ध्यान रखें यहाँ एनिमल के छोटे साइज के होंगे. इसी प्रकार आप देखते हो कि आइस पर जैसे पोलर बियर देखा है, या आइस के आसपास रहने वाले जो एनिमल है उसका साइज छोटा होता है, लिम्ब छोटी होती है, टेल यहाँ पर स्मॉल होती है. दैट इज नोन एज दी एलन लॉ. देन सेकंड है कोप लॉ. According to Cope, it states that there is a tendency of animal to increase in size during the long course of the evolution. Cope एक साइंटिस्ट है, उसने क्या कहा, एनिमल की एक टेंडेंसी है, क्या साइज इंक्रीज की एक टेंडेंसी है. दैट इज कॉल्ड द Cope लॉ. देन नेक्स्ट इज द डार्विनिज्म. यहां तक बच्चों हम यहां पर एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि लेमार्क की थ्योरी क्या है. लेमार्क के साथ में एलन और कोप की थ्योरी क्या है, जो इवोल्यूशन और उसके साथ में इकोलॉजी के अंदर भी ये काम आती है. हम क्लास 12th के अंदर इकोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पर एलन रूल और कोप रूल है, वो यहाँ हमें पढ़ने को मिलेगा. तो हम यहाँ पर इवोल्यूशन के संबंध में भी ये बताते हैं कि एनिमल की इंक्रीज होने की साइज और टेंडेंसी क्या है, और ऑर्गन किस एनवायरमेंट में लार्ज होते हैं और स्मॉल होते हैं. ये बात एलन और कोप यहाँ डिस्क्राइब करता है, और इसके साथ में लेमार्क थ्योरी डिस्क्राइब होती है. लेमार्क का क्रिटिसाइज सबसे ज्यादा किया था विजमैन ने, और विजमैन ने इसको प्रूव किया जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म के बेस पे. और रेड पेयर यहाँ रेड की टेल को कट करके 22 टाइम में एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज है वो विजमैन ने किया था लेमार्क को. तो ये कुछ लेमार्क की थ्योरी फेवर में एग्जांपल, क्रिटिसाइज एग्जांपल आपको बताए. आई होप एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जांपल्स एंड थ्योरी ऑफ द लेमार्क. थैंक यू सो मच.